Good day, dear students. Today we are going to start with our lecture number 23 of Total Quality Management. And like we were studying in our previous lecture about how total quality management and the strategic focus in total quality management. So we're going to continue with that today. And we're going to go about looking at how are the different prospects. We were studying a case study also. In the previous, how an organization can apply the total quality management systems to their own organization. Now, we had done 2 points of the strategic focus in the previous lecture. Now we're going to start with point number 3. So point number 3 is organizational structure. Now when we speak about organizational structure, so एक organization का structure क्या है, किस base के ऊपर जो है उसके क्या processes है, किस base पे built है. Now traditional management views, we were like comparing how हम traditional management के views को हम compare कर रहे थे total quality management के साथ. यानी कि अगर हम जो traditional management का system एक चल रहा था उसमें किस तरीके से वर्क होता था एक ऑर्गेनाइजेशन में, और फिर उसके बाद अगर हम टोटल क्वालिटी के रूल्स अप्लाई करें तो फिर उसमें क्या डिफरेंसेस आते हैं. So the third point, now traditional management views an enterprise as a collection of separate highly specialized individual performers and units loosely linked by a functional hierarchy. So हम traditional management को अगर जज करते हैं तो वो एक enterprise को जो है it views it as a collection of separate लेकिन यानी मुख्तलिफ separate अलहदा highly specialized individual performers और units की बेस पे उसको व्यू करता है, और जो बहुत लूसली जो है ना लिंक्ड हैं किसी भी फंक्शनल हायरार्की या हायर सुपीरियर मैनेजर्स या लीडर्स से. So lateral connections are made by intermediaries close to the top of the organizations. So ऐसे connection जो top management के साथ और lower management की बनती है वो intermediaries ऐसे जो middle managers होते हैं उनके through एक organization में connections होते हैं. Now total quality views the enterprise as a system of interdependent processes linked laterally over time through a network of collaborating internal and external suppliers and customers. अब अगर हम total quality management की तरफ से देखते हैं तो total quality के view के हिसाब से एक enterprise जो है वो एक पूरा system है independent processes का. ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंडिविजुअल परफॉर्मर्स और यूनिट्स की बेस पे जज करते हैं. टोटल क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूरे एंटरप्राइज को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक सिस्टम को इंडिपेंडेंट प्रोसेस के हिसाब से देखते हैं, और उसको दे लिंक लैटरली ओवर टाइम थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कोलैबोरेटिंग, और वो उनको लिंक रखते हैं उसका या उसके लिंक बनाते हैं कोलैबोरेट करने का या एक नेटवर्क एस्टैब्लिश करने का जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल सप्लायर्स एंड कस्टमर्स के साथ. So they think that the internal customers need to be completely on one base and external also. So वो उसके ऊपर ज़्यादा focus करते हैं. So when we speak about organizational structure then, now each process is connected to the enterprise's mission and purpose through a hierarchy of micro and macro processes. So every process contains sub-processes and is also contained with a higher process. Now this structure of processes is repeated throughout the hierarchy. तो अगर हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के हिसाब से देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को तो फिर हर प्रोसेस जो है वो बता रहे हैं कि एक कनेक्ट है एंटरप्राइज की मिशन के साथ और उसके पर्पस के साथ, और चाहे वो माइक्रो लेवल पे है या मैक्रो प्रोसेसेस हैं वो हर एक जो है इवन हायर अथॉरिटीज या लीडरशिप तक वो कनेक्टेड होते हैं. नाउ हर प्रोसेस में जो है सब प्रोसेसेस भी होते हैं, उसको डिवाइड कर दिया जाता है, और उसमें लेकिन उसमें एक हायर प्रोसेस भी होता है साथ सब डिवीजन में भी. नाउ ये स्ट्रक्चर जो प्रोसेसेस का है वो थ्रू आउट द होल हायरार्की उसमें रिपीट किया जाता है, ठीक है, ओवरऑल पूरे ऑर्गेनाइजेशन में. Now when we speak about point number 4,
that would be organizational change. अब strategic focus में हम जब नोट करते हैं कि total quality management के हिसाब से, तो fourth point जो है वो बनता है organizational change. Now, once a traditional organization has found a formula for success, it keeps following it. So एक दफ़ा जब एक ट्रेडिशनल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई फॉर्मूला मिल जाता है सक्सेस का, तो वो फिर उसको फॉलो करता रहता है. Now, management's job is to prevent change, to maintain the status quo. और मैनेजमेंट का काम जो है वो चेंज को प्रिवेंट करना या रोकना है, ताकि एक प्रॉपर एक ही तरीके से मेंटेन होके सारे काम चलें. Now, in total quality, the environment in which the enterprise interacts is changing constantly. So, अगर total quality में हम देखें तो जो environment है enterprise की जिसमें वो काम कर रहा होगा वो constantly change हो रहा होता है. So, if the enterprise continues to do what it has done in the past, its future performance relative to the competition will deteriorate. So, अगर एक एंटरप्राइज जो है वो वही चीज कंटिन्यू करता रहे जो उसने पास्ट में भी जिस हिसाब से चल रहा था, तो फिर वो उसका जो फ्यूचर परफॉर्मेंस होगा इट वुड बी रिलेटिव टू द कंपटीशन विल डिटेरियोरेट. तो वो जो कंपटीशन से रिलेटिव उसका परफॉर्मेंस होगा वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा. So management's job, therefore, is to provide a leadership for continual improvement and innovation in processes and systems, products and services. So management की जॉब क्या आ जाती है फिर? मैनेजमेंट का जॉब जो है वो ऐसा लीडरशिप प्रोवाइड करना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में जो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की तरफ चल रहा हो और इनोवेशन हो उसके प्रोसेसेस में एंड उसके सिस्टम्स में भी, उसके प्रोडक्ट्स में भी इनोवेशन हो और सर्विसेज में भी इनोवेशन हो. So external change is inevitable, but a favorable future can be shaped. So external change तो obviously उसको आप नहीं जज कर सकते या रोक नहीं सकते कि कैसे वो change ना हो, तो वो तो change होगा, but एक अच्छा favorable future जो है, अच्छा future जो है आप shape कर सकते हैं अपने organization के लिए. So number 5, अब organizational structure और organizational change के बाद point आता है teamwork. So when we speak about teamwork, in traditional management, individuals and departments work for themselves. So traditional management में जो है वो individuals जो है और departments जो है वो अपने लिए काम करते हैं. So teamwork में traditional में तो obviously जो पुराना system एक चल रहा था जिसमें total quality management नहीं होता organizations में, तो उसमें तो obviously हर individual अपने लिए काम कर रहा है, हर department अपने लिए काम कर रहा है, ठीक है. उसमें यानी as a टीम वर्क का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उनके. So individuals are driven by short-term performance measures, have narrowly defined jobs, and rarely see how they fit into the whole process or system. So individuals जो है वो short term performance measures की तरफ जो है ना उनका रुझान ज़्यादा होता है और have narrowly defined jobs और उनकी यानी jobs जो है इतने proper तरीके से define नहीं होती हैं और and rarely see how they fit into the whole process or system और उनको खुद बहुत कम ये चीज़ समझ आती है कि वो पूरे process या पूरे system में क्या role play कर रहे हैं. So little communication and cooperation exists between design and manufacturing, manufacturing and marketing, and sales, service and design. तो अगर हम ये जज करें कि जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं अभी वो चला रहे, तो उसमें बहुत कम कम्युनिकेशन होती है आपस में, ठीक है, बहुत कम कोऑपरेट करते हैं वो एक दूसरे के साथ, कोऑपरेशन एग्जिस्ट नहीं करती डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग के डिपार्टमेंट्स में, ठीक है. डिज़ाइन वाले अपना काम कर रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग वाला अपना कर रहे होंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग वाले जो है उनकी मार्केटिंग वालों के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है प्रॉपर या कोई कोऑपरेशन नहीं प्रॉपर हो रही होती, फिर सेल्स सर्विस और डिज़ाइन में उसमें भी ये न्यू कोऑपरेशन नहीं है. इन सारी चीज़ों का कोऑपरेशन ना होने से नुकसान क्या होता है कि जब फॉल्ट्स एंड
डिफेक्ट्स जो हैं किसी भी प्रोडक्ट में, जब वो मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तो अगर डिज़ाइन में फॉल्ट है तो वो मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे अगर उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या कोऑपरेशन नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग में ऑब्वियसली वो चीज़ मैन्युफैक्चर होके डिफेक्टेड निकलेगी. सो फॉल्ट जज करना कि वो डिज़ाइन वालों का है या मैन्युफैक्चरिंग का है, वहाँ पे फिर प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है. सो अगर हर डिपार्टमेंट जो है वो इकट्ठा मिल के काम करे एंड उनके अंदर कोऑपरेशन हो, देन देयर are less chances of errors and defects. So total quality management, that's what total quality is trying to give to an institution. So we can say that in total quality individuals, they cooperate in team structures such as quality circles, steering committees and self-directed work teams. So total quality individuals जो है वो एक corporate में जो है ना एक team की तरह structure की तरह काम करते हैं, चाहे वो quality circles की सूरत में हो जैसे जापान में हो रहा है, that a certain group of people voluntarily make the quality circles and then they check the quality of the product or the manufacturing, या steering committees होती हैं या self directed work teams होती हैं, या ऐसी work teams बना देते हैं जिनको जो खुद अपने यानी उनको quality check करने के लिए they are supposed to be doing that. So departments work together towards system optimization through cross-functional teamwork. और total quality वाले जो institutions हैं उनका फ़र्क अब individual traditional आप system के साथ अगर मैच करें तो traditional में तो बिल्कुल भी कोई cooperation नहीं है, आपस में उनका कोई communication बहुत कम है, ठीक है, उनकी process उनको अपना system ही नहीं पता कि वो किस तरीके से उनको क्या function करना है. So जो organizations total quality को use कर रही हैं अब उसमें departments जो है वो इकट्ठा काम करते हैं, ठीक है, एक सिस्टम ऑप्टिमाइजेशन था कि एक सिस्टम एक तरीके से प्रॉपर रन हो सके उस तरह, और वो क्रॉस फंक्शनल टीम वर्क के जरिए ये काम जो है ना अकम्प्लिश करते हैं, और उसका एंड रिजल्ट ये होता है कि एवरीबडी इज कम्युनिकेटिंग एंड देन दे आर फेसिंग लेस, कॉस्ट भी कम पड़ती है, एरर्स और डिफेक्ट्स भी कम आते हैं. So the adversarial relationship between union and management is inevitable in traditional management. So एक जो रिलेशनशिप यूनियन का और मैनेजमेंट का है ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो वो तो उनके बीच में यानी इट्स ऑलवेज लाइक देयर ऑन ऑपोजिट साइड्स, दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर. Now the only room for negotiation is in areas such as wages, health and safety. और negotiate वो सिर्फ किन चीज़ों पे या उनका discussion या agreement यूनियन की और मैनेजमेंट की, यानी अगर हम ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सिर्फ negotiation उनकी या तो wages यानी सैलरी के ऊपर या हेल्थ इश्यूज या सेफ्टी इश्यूज पे होती है. Now, in total quality, the union is a partner and a stakeholder in the success of the enterprise. अब total quality अगर में हम organization के को जज करें तो जहाँ जो implement कर रहे हैं total quality के system को, उसमें union वाले जो है वो एक partner की तरह है, ठीक है, और उनका भी उतना ही stake है या उनका भी उतना ही hold है पूरे enterprise के success में, और उनकी कामयाबी में उनका भी यानी हिस्सा है. So the areas for partnership and collaboration are broad. और एरियाज जो है वो जो पार्टनरशिप की और कोलैबोरेट करने की वो बहुत वास्ट हो जाती हैं, बड़े ही हो जाते हैं, ब्रॉड हो जाती हैं. पर्टिकुलरली हम अगर देखें तो वो इन एजुकेशन स्पेशली ट्रेनिंग एंड मीनिंगफुल इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस दैट दे अफेक्ट एंड दैट अफेक्ट देयर वर्क. तो एरियाज ऑफ पार्टनरशिप अगर और कोलैबोरेशन में हम जज करें तो ख़ासतौर पे एजुकेशन में तो वो उनका ट्रेनिंग में, फिर एक एम्प्लॉइज़ का एक प्रॉपर तरीके से उनकी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, और जिसका रिजल्ट भी अच्छा हो उस तरह की इन्वॉल्वमेंट और इम्प्रूवमेंट प्रोसेसेस की, उसमें अफेक्ट करता है उनके काम को भी और ओवरऑल पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है वो चीज़. सो वो एक बेहतरी की तरफ अफेक्ट कर रहा होता है. So in the sixth point, motivation and job design. Motivation in traditional management is often akin to McGregor's theory, X model of motivation. Workers dislike work and require close supervision and control.
सो 6 पॉइंट में अगर हम स्ट्रेटेजिक फोकस का देखते हैं तो मोटिवेशन जो है वो एक ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स मॉडल जो है मोटिवेशन की तरफ, उसमें वर्कर्स जो हैं वो वर्क डिसलाइक करते हैं एंड दे रिक्वायर क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल, और उनको सुपरविजन और कंट्रोल की बहुत ज़रूरत होती है. अब TQ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशंस, दे सपोर्ट द प्रीमिस ऑफ थ्योरी वाई. Workers are self-motivated, seek responsibility, and exhibit a high degree of imagination and creativity at work. So, total quality organizations में अगर हम जज करते हैं तो उसमें सपोर्ट जो है वो इस प्रीमाइस पे है कि थ्योरी Y चलती है, नॉट थ्योरी X मॉडल मैकग्रेगर का. बट उसमें वर्कर्स जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, वो खुद मोटिवेट होते हैं अपने काम की तरफ, और वो खुद दे सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने काम की, एंड एग्जिबिट अ हाई डिग्री ऑफ इमेजिनेशन क्रिएटिविटी एट वर्क. और अपने काम के ऊपर वो एक मेजर जो है इमेजिनेशन उनकी और उनकी क्रिएटिविटी जो है काम पे वो शो होती है. ठीक है. सो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में यूजुअली वर्कर्स विल नॉट बी सो हैप्पी, और उनको यानी अंडर सुपरविजन काम करना पड़ता है और उनके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ता है. इसमें वर्कर्स जो है ना, टोटल क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर्स जो है ना खुद इतने मोटिवेटेड होते हैं कि वो अपना काम खुद परफेक्ट तरीके से अंजाम देते हैं. Now, total quality managers provide leadership rather than overt intervention in the processes of their subordinates, who are viewed as process managers rather than functional specialists. तो अगर हम टोटल क्वालिटी में जज करें तो टोटल क्वालिटी मैनेजर्स जो है वो खुद लीडरशिप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, निस्बतन के उनके अंदर किसी प्रोसेस में या उनके इंटरवेंशन इन द प्रोसेस ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, और अपने जो नीचे काम करने वाले हैं उसमें उनके कामों में दखल अंदाजी नहीं करते ना. हु आर व्यूड एज प्रोसेस मैनेजर्स रादर देन फंक्शनल स्पेशलिस्ट, और उनको फंक्शनल स्पेशलिस्ट के तौर पे नहीं लिया जाता बट प्रोसेस मैनेजर्स के सेंस में उनको काउंट करते हैं. सो पीपल आर मोटिवेटेड टू मेक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशंस टू व्हाट दे बिलीव इज एन इम्पोर्टेंट एंड नोबल कॉज ऑफ वैल्यू टू द एंटरप्राइज एंड सोसाइटी. सो लोग जो है वो मोटिवेट होते हैं ऐसी कंट्रीब्यूशंस की तरफ जो जिससे उनको यकीन होता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और किसी अच्छे कॉज के लिए इस्तेमाल हो रही है, और उनको जो है ख़ास तौर पे जो सोसाइटी और एंटरप्राइज के लिए बेहतरी हो उस चीज़ पे वो बिलीव करते हैं कि वो मोटिवेटेड होते हैं कि वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी अच्छी चीज़ के होने के लिए. नाउ इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट competition is inevitable and inherent in human nature. So traditional management में अगर हम देखें तो competition को जो है हम avoid नहीं कर सकते और एक human nature का एक part है, एक हिस्सा है. So performance appraisal, recognition and reward systems place people in an internally competitive environment. सो परफॉर्मेंस अप्रेजल के हिसाब से अगर हम देखें तो रिकग्निशन उनको देना और रिवॉर्ड सिस्टम्स में जो है ना उनको प्लेस करना ऐसे कि इंटरनली जो है वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में इन्वॉल्व हों वो. सो इंडिविजुअलिज्म इज रीइंफोर्स्ड टू द डिटर्मिनेंट ऑफ टीम वर्क, और इंडिविजुअलिज्म जो है उसको हम कहते हैं कि वो एक तरह से रीइंफोर्स किया जाता है टीम वर्क के निस्बत, यानी हम इंडिविजुअलिज्म को नहीं प्रेफर करते निस्बतन के टीम वर्क को. हम कहते हैं कि उसकी जगह जो है वो टीम वर्क में काम करना टोटल मैनेजमेंट में, ये ट्रेडिशनल उसमें यानी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में ये चीज़ आ जाती है कि इंडिविजुअल्स के ऊपर जोर ज़्यादा दिया जाता है, और टोटल क्वालिटी में हम कोशिश करते हैं कि वो टीम वर्क के ऊपर ज़्यादा जो है जोर हो. So now when we speak about that in traditional management, if we are focusing on just one single individual person's work, then individualism is reinforced to the determinant of teamwork, और obviously individualism पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा teamwork के निस्बत. So competitive behavior जो है वो one person against another, one group against another is not a natural state in total quality. और total quality में जो है ना वो एक competitive behavior जो है आपस में competition का वो एक नेचुरल चीज़ नहीं है, और एक इंसान जो है वो दूसरे के अगेंस्ट नहीं होता बट एक ग्रुप में इकट्ठे काम करते हैं, और टोटल क्वालिटी में यानी वो एक नेचुरल चीज़ बन जाती है कि टीम वर्क में मिलके काम करना है, अलग अलग नहीं.
So total quality reward systems recognize individual as well as team contributions and reinforce cooperation. So total quality में जो है वो systems को recognize यानी reward दिया जाता है systems को recognize करने के individual को, और दूसरा team contributions को भी देखा जाता है ताकि उसमें से cooperation जो है उसको दोबारा reinforce किया जा सके. Now the seventh point is management and leadership. So management and leadership would say that traditional management views people as interchangeable commodities developed to meet the perceived needs of the enterprise. So management और leadership में ट्रेडिशनल मैनेजमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो वो लोगों को देखते हैं कि वो इंटरचेंजेबल कमोडिटीज हैं, ठीक है, एंड वो डेवलप हुए हैं टू मीट द परसीव नीड्स ऑफ द एंटरप्राइज, और सिर्फ एंटरप्राइज की ज़रूरत के लिए जो है यानी उनको हम चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, और एक एंटरप्राइज या एक कंपनी या एक इंस्टीट्यूशन के लिए उनको एक सिर्फ एक कमोडिटी समझा जाता है. सो पीपल आर पैसिव कंट्रीब्यूटर्स विद लिटिल autonomy doing what they are told and nothing more. और लोग ज्यादातर जो है बस उनको जो कह दिया जाता है वो उन्होंने वही करना होता है. अब टोटल क्वालिटी व्यूज पीपल एज द एंटरप्राइजेस ट्रू कॉम्पिटिटिव एज. सो टोटल क्वालिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो वो लोगों को अपने इस तरह गिनते हैं अपने एम्प्लॉइज को कि जैसे वो एक उनके एंटरप्राइज के लिए उनके इंस्टीट्यूशन के लिए वो कॉम्पिटिटिव एज पे हैं, ठीक है, एंड दे आर हेल्पिंग देम accomplish the competition in the market. Now, leadership provides people with opportunities for personal growth and development. So, leadership को अगर हम देखें तो वो obviously लोगों को opportunity देती है कि वो इंसान जो है ना personal growth उसकी हो सके और उसकी development हो सके किसी भी organization में. Now, people are able to take pride and joy in learning and accomplishment. And the ability of the enterprise to succeed is enhanced. So लोग जो है वो बहुत प्राइड लेते हैं, जॉय लेते हैं सीखने में, अकॉम्प्लिश करने में, और उनकी जो एबिलिटी है ताकि एंटरप्राइज जो है वो सक्सीड कर सके या इन्हांस कर सके सक्सेशन में, उसमें हेल्प आउट करते हैं. ना पीपल आर एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स valued for their creativity and intelligence. और लोग जो है वो ऐसे एक्टिव कंट्रीब्यूटर्स होते हैं एक तरह से जो वैल्यू करते हैं क्रिएटिविटी को भी और उनकी इंटेलिजेंस को भी, जो है ना उनको उसकी बेस पे उनको एक्टिव कंट्रीब्यूटर समझा जाता है क्योंकि वो इंटेलिजेंट भी होते हैं, अपनी क्रिएटिविटी भी यूज कर रहे होते हैं, क्रिएटिव होते हैं. So every person is a process manager presiding over the transformation of inputs to outputs of greater value to the enterprise and to the ultimate customer. So every person, हर इंसान जो है वो एक process manager है, ठीक है, जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस पे इनपुट्स या आउटपुट्स की उस पे ऑफ ग्रेटर वैल्यू जो एंटरप्राइज के लिए ज्यादा वैल्यू रखती हो और उसके जो है अल्टीमेट कस्टमर होता है. Now, when we speak about competitive advantage on basis of quality strategy, so a firm has many options in defining its long-term goals and objectives. So एक फर्म में जो है बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाती हैं जिसमें वो डिफाइन करते हैं उसके लॉन्ग टर्म गोल्स भी और उसके ऑब्जेक्टिव्स भी. So the customer it wants to serve the products and services it produces and delivers. और जिन कस्टमर्स को वो सर्व करना चाह रहे हैं और जो प्रोडक्ट और सर्विसेज वो जो है ना प्रोड्यूस कर रहे हैं या डिलीवर कर रहे हैं उसमें जो है वो उनके लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स नजर आते हैं. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग then is the process by which the members of an organization envision its future and develop the necessary procedures and operations to carry out that vision. So strategic planning जो है वो ऐसा process है जिसके तहत जो है members जो है organization के वो envision कर सकते हैं एक future को and फिर वो develop ऐसा कर सकते हैं, ऐसे necessary procedures develop कर सकते हैं ताकि वो जो है उनका vision carry out करने के लिए वो उन operations को use कर सकते हैं और उस तरीके से वो मैनेज करते हैं ताकि एक वो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव कर सके उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के तहत और जो फ्यूचर का विजन है वो उसको डेवलप करके और उस विजन को पूरा कर सके. सो स्ट्रैटेजी अगर हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजी द रिजल्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इज द पैटर्न ऑफ डिसीजंस दैट डिटरमिन्स एंड रिवील्स अ कंपनीज गोल्स, policies and plans to meet the need of its stakeholders.
So strategy को अगर हम जज करते कि strategy क्या है, तो strategy जो है वो result है strategic planning की, and is the pattern of decisions that determines and reveals the company's goals. और वो एक ऐसा यानी strategic planning के ज़रिए हम अपने decisions अपने company के हम उनको जान सकते हैं और उनके goals, policies, plans to meet the need of its stakeholders, ताकि वो अपने stakeholders के सारी ज़रूरियात पूरी कर सके अपने goals के through, अपने policies के through, अपने plans के through. Now, an effective strategy allows a business to create a substantial competitive advantage. और कोई भी effective strategy जो है वो allow करती है एक business को create करने में, कोई भी sustainable competitive advantage को sustain करने में. Now when we move on to quality as a strategy, अब अगर quality को judge करें एक strategy के point of view से, so the concept of strategy has different meanings to different people. So concept of strategy जो है वो different meanings रखता है different लोगों के साथ, ठीक है. और James Bryan Quinn characterizes strategy as follows. So the concept of strategy जो है हम कहेंगे कि different meanings उसके हैं different लोगों के लिए, और जेम्स ब्रायन क्विन के मुताबिक उसने categorize किया strategy को in points में. एक first point is a strategy is a pattern or plan that integrates an organization's major goals, policies and action sequences into a cohesive whole. So strategy जो है वो ऐसा pattern है या ऐसा plan है जो integrate करता है किसी भी organization के major goals को, ठीक है, उनकी policies को और उनके action sequences को, ताकि वो एक cohesive whole में तब्दील हो जाए. Now a well formulated strategy, कोई भी अच्छी formulated strategy जो है वो helps to marshal and allocate an organization's resources into a unique and viable posture based on its relative internal competencies and shortcomings. So कोई भी well formulated strategy अगर है तो वो हेल्प करती है हमें मार्शल करने में और एलोकेट करने में कि हम और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो है रिसोर्स जो है उसकी into the unique and viable posture based on its relative internal competencies and shortcomings, ताकि हम उसको मार्शल कर सकें, एलोकेट कर सकें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एक यूनिक तरीके से, ताकि उसके जो है ना पोस्चर जो जिस पे वो बेस्ड है एंड इट्स रिलेटिव इंटरनल सिचुएशन कॉम्पिटेंसीज या उनकी जो शॉर्ट कमिंग है जिस पे वो पूरे नहीं उतर आ रहे, एंटिसिपेटेड चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में कोई भी जो है चेंजेस एंटिसिपेटेड हो, ठीक है, एंड कंटिंजेंट मूव्स बाय इंटेलिजेंट अपोनेंट्स, और कोई भी ऐसे कंटिंजेंट मूव्स हों जो उनके अपोनेंट्स के जो है अगेंस्ट जा रहा हो, खासतौर पे अपने इंटेलिजेंट अपोनेंट्स के अगेंस्ट. नाउ quality as a strategy, if we speak about that, now formal strategies contain 3 elements. So 3 elements होते हैं formal strategies में, ठीक है. Goals to be achieved, यानी वो goals जो achieve करने हैं. Policies that guide or limit action, ऐसी policies जो guide करती हैं action को limit करती हैं. And action sequences or programs that accomplish the goals. So formal strategies जो है वो contain करती हैं 3 elements को. एक तो goals जो achieve करने होते हैं, ठीक है. फिर policies जिनसे वो that guide or limit action जो guide करती हैं या action को limit करती हैं. And action sequences or programs that accomplish the goals, और ऐसे action sequences या programs जो हैं जो goals को accomplish करने में help करते हैं. Now, effective strategies develop around a few key concepts and thrusts that provide focus. So, effective strategies अगर हम judge करें तो effective strategies जो है वो develop होती है कुछ खास key concepts के इर्द गिर्द, और वो thrust करती हैं focus provide करने के लिए, उस पे जोर देती हैं. So, the essence of strategy maybe is to build a posture that is so strong in selective ways that the organization can achieve its goals despite unforeseeable external forces that may arise. So essence अगर हम देखते हैं strategy का, ठीक है, तो वो एक posture build करने में help करता है,
ताकि वो स्ट्रॉन्ग और सिलेक्टिव वेज में उसको बिल्ड कर सके, एंड दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल्स डिस्पाइट अनफोरसीएबल एक्सटर्नल फोर्सेस दैट मे अराइज। और फिर भी एक कोई भी ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं, उनको भी अचीव करने, उनको ओवरकम करने के लिए, ठीक है, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को फिर भी वो सिलेक्टिव वेज में हेल्प करती है। Now, the traditional focus of business strategies has been finance and marketing. So, traditional focus अगर हम देखते हैं business strategies का, तो वो finance और marketing है। Now, these parallel two of the principal sources of competitive advantage, for example, cost and differentiation. So, अगर हम traditional focus देखें business strategies का, तो वो तो finance और marketing है basic. Now, ये दो पैरेलल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, एंड देयर सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिया जा सकता है इन दोनों सोर्सेज से, एंड दैट इज दैट द कॉस्ट, उनकी जो कॉस्ट डिफरेंशिएशन है उससे हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लिया जा सकता है। सो टोटल क्वालिटी विद अ फोकस ऑन पीपल लीड्स to improvements in both areas. Therefore, quality can be viewed as a strategy in itself. So total quality को अगर हम जज करते हैं focus as a focus on people, different people, तो वो improvements की तरफ जाहिर बात है दोनों areas में, cost में भी, differentiation में भी, उनमें भी, या finance या marketing में, दोनों सूरतों में improvement लेके आती है, and therefore quality can be viewed as a strategy in itself. और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट लेके आ रहा है, ठीक है, विद फोकस ऑन द पीपल ऑफ इट, तो फिर वो ऑब्वियसली वो एक क्वालिटी भी एक स्ट्रैटेजी की तरह हम उसको व्यू कर सकते हैं। नाउ द रोल ऑफ क्वालिटी इन बिजनेस स्ट्रैटेजी हैज टेकन टू सिग्निफिकेंट स्टेप्स सिंस 1980। सो रोल अगर हम देखते हैं क्वालिटी में, ठीक है, ऑफ क्वालिटी इन बिजनेस स्ट्रैटेजी में हम क्वालिटी का अगर रोल जज करें तो it has taken two significant steps since 1980. So 1980 तक उसने जो है ना वहाँ से अब तक दो significant steps लिए हैं। एक, now the first one, first many firms have recognized that a strategy driven by quality can lead to significant market advantages. So first हम ये जज करते हैं कि कोई भी फर्स्ट हम ये जज करते हैं कि पहले जो फर्म्स हैं उनको रिकग्नाइज किया जाता है ताकि देयर स्ट्रैटेजी ड्रिवन बाय क्वालिटी, उनमें क्वालिटी के ऊपर जो है स्ट्रैटेजीज यूज हो रही हैं, एंड इट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट मार्केट एडवांटेजेस, और मार्केट में एडवांटेजेस आपको बहुत मिल सकते हैं इससे। सेकेंड क्या है, द लाइन्स बिटवीन क्वालिटी स्ट्रैटेजी एंड जेनरिक बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैव बिकम ब्लर्ड टू द पॉइंट वेयर TQ प्रिंसिपल्स are integrated into most businesses, normal business planning. So अगर हम सेकंड वाला देखें तो the lines between quality strategy and generic business जो strategies हैं उनके बीच की जो लाइन है वो जो है ना थोड़ा सा ब्लर हो गई है या क्लियर नहीं है अब, टू द पॉइंट जहाँ पे खास तौर पे टोटल क्वालिटी के प्रिंसिपल्स यूज होते हैं और उनको इंटीग्रेट किया जाता है एक नॉर्मल बिजनेस प्लानिंग के अंदर। So that is कि total quality is a basic operating philosophy that provides the foundation for effective management. So उसको हम एक्सप्लेन ऐसे कर सकते हैं कि टोटल क्वालिटी जो है वो एक बेसिक ऑपरेटिंग फिलॉसफी है, ठीक है, जिसको जो एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है किसी भी इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए। सो इट्स लाइक अ बेस, उसकी एक फाउंडेशन है, एक बेस है जिसकी उसके तहत फिर जाके जो है आप क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं और इफेक्टिव मैनेजमेंट लेके आ सकते हैं। Now, for most companies, integration of total quality into strategic business planning is the result of a natural evolution. So, ज़्यादातर countries के लिए integration जो है total quality का, खासतौर पे strategic business planning के अंदर, वो result है natural evolution का. For most new companies or those that have enjoyed a reasonable measure of success, quality makes a backseat to increasing sales, expanding capacity और boosting production. So अगर हम जज करते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज़्यादातर कंपनीज के लिए जो है वो लेट्स से कि यूज हो रहा है फॉर मोस्ट न्यू कंपनीज
or those that have enjoyed a reasonable measure of success, और ऐसी कंपनीज या फिर उनमें से जिनमें से जिन्होंने सक्सेस बहुत अच्छे तरीके से लिया अपने बिजनेस में, क्वालिटी टेक्स अ बैक सीट टू इंक्रीज इन सेल्स. और क्वालिटी जो है वो एक यानी पीछे हो जाती है निस्बतन के सेल्स इंक्रीज करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उनके लिए, एंड एक्सपैंडिंग कैपेसिटी उनकी जो है वो भी बढ़ जाती है, और बूस्टिंग प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन बूस्ट करने का भी वो उनका ज्यादा यानी कॉन्सेप्ट उनका हो जाता है. सो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूजुअली focuses on financial and marketing strategies. So अगर हम ये जज करें तो हम कहेंगे कि स्ट्रेटेजिक जो प्लानिंग है, ठीक है, वो ज्यादातर फोकस कर रही है किस चीज पे, आपके फाइनेंशियल और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बेस के ऊपर, उस पे फोकस करती है ज्यादा. Now when we speak about quality as a strategy, so as a company begins to face increasing competition and rising consumer expectations, cost cutting objectives take precedence. So एक कंपनी जो अब स्टार्ट करती है फेस करना शुरू करती है कंपटीशन को, ठीक है, और कस्टमर एक्सपेक्टेशंस उसके राइज होना शुरू हो जाते हैं, तो कॉस्ट कटिंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो फिर प्रेसिडेंस ले जाते हैं उसके ऊपर. सो सम डिपार्टमेंट्स और इंडिविजुअल्स मे चैंपियन क्वालिटी improvement efforts, but quality is not integrated in the company's strategic plan, business plan. So कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हम कहेंगे कि इंडिविजुअल्स ने उनको जो है ना चैंपियन किया क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स में, ठीक है, और क्वालिटी जो है इज नॉट इंटीग्रेटेड इन द कंपनी स्ट्रेटेजिक बिजनेस प्लान, लेकिन क्वालिटी जो है वो उसको कंपनी की स्ट्रेटेजिक प्लान में हम उसको हिस्सा नहीं देते, इंटीग्रेट नहीं करते, मिक्स नहीं करते. सो कुछ डिपार्टमेंट्स जो है वो सिर्फ चाह रहे होते हैं कि हम क्वालिटी इंप्रूवमेंट एफर्ट्स कर सकें, और सारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही होती. So in the face of market crisis, which many US firms experienced in the 1970s and 1980s, top management begins to realize the importance of quality as a strategic operating policy. So हम अगर देखते हैं कि मार्केट क्राइसिस अगर हम देखते हैं यूएस का, ख़ास तौर पे जब वो एक्सपीरियंस था उनका 1970s या 1980s में, तो 1970s और 80s में टॉप मैनेजमेंट जो है इट बिगिंस टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी एज ए स्ट्रेटेजिक ऑपरेटिंग पॉलिसी. तो उनको उसके बाद एक इम्पोर्टेंस महसूस हुई कि क्वालिटी वाकई एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का या स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन का तरीका या उस पॉलिसी पे चलना चाहिए. सो इन मैनी केसेस हाउएवर क्वालिटी इज कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग प्लान्स. सो लेकिन ज्यादातर केसेस में अगर आप जज करें तो क्वालिटी को जो है वो कंसिडर किया जाता है अलहदा से, फाइनेंशियल और मार्केटिंग प्लान से अलहदा गिना जाता है. सो कंपनीज दैट एस्पायर टू वर्ल्ड क्लास स्टेटस रीच द हाईएस्ट लेवल. तो ऐसी कंपनीज जो एस्पायर करती हैं वर्ल्ड क्लास स्टेटस अचीव करने के लिए, वो फिर वो वर्ल्ड क्लास स्टेटस अचीव कर जाते हैं बहुत हाईएस्ट लेवल के ऊपर, ठीक है, जब वो अपने क्वालिटी को यानी अगर सेपरेट ना गिने financial or marketing plans. So of evolution where quality becomes an integral part of overall strategic plan and is viewed as the central operating strategy. और ऐसी कंपनियों में वो हाई लेवल पे चली जाती है जहाँ पे एवोल्यूशन जो है क्वालिटी जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट बन जाता है पूरे स्ट्रेटेजिक प्लान का, और उसको फिर एक सेंट्रल ऑपरेटिंग स्ट्रैटेजी के तौर पे गिना जाता है, यानी एक बेस समझी जाती है आपके इंस्टीट्यूशन या आपकी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी की, कि उसमें जो है स्ट्रेटेजिक प्लान को एक मेजर हिस्सा बना दिया जाता है. सो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिनोट्स अ फर्म्स एबिलिटी टू अचीव मार्केट सुपीरियोरिटी ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स. सो कॉम्पिटिटिव अगर हम एडवांटेज जज करते हैं तो वो एक डिनोट करता है एक फर्म की एबिलिटी, ताकि वो अचीव कर सके मार्केट की सुपीरियोरिटी अचीव कर सके ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर. नाउ इन द लॉन्ग रन अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड्स अबव एवरेज परफॉर्मेंस. सो लॉन्ग रन में अगर हम जज करते हैं तो अगर आप सस्टेन कर सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को, ठीक है, तो वो प्रोवाइड करती है अबव एवरेज परफॉर्मेंस को.
एवरेज से अबव परफॉर्मेंस, दैट मीन्स कि आपके वर्कर्स जो है वो अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ले लेते हैं तो फिर वो लॉन्ग रन में वो ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाती है. सो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हैज 6 कैरेक्टरिस्टिक्स. तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर हम देखते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे. नंबर 1, it is driven by customer wants and needs. A company provides value to its customers that competitors do not. So अगर हम देखते हैं तो वो कस्टमर की wants and needs के मुताबिक होती है, ठीक है. वो कोई भी कंपनी जो है वो प्रोवाइड करती है, उसके वैल्यू प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स के लिए, और कॉम्पिटिटर्स को वो ये चीज़ नहीं कर रहे होते. So it makes a significant contribution to the success of business. और ये एक obviously आप बिजनेस की सक्सेस की तरफ लेके जाते हुए उसकी तरफ एक बड़ा मेजर contribution ये शो करता है. It matches the organization's unique resources with the opportunities in the environment. So obviously ये organization की unique resources को मैच करता है environment में जो opportunities उनको मिल रही हैं उससे. No two companies have the same resources. A good strategy uses them effectively. So no two companies हम कह सकते हैं कोई भी ऐसी दो कंपनी नहीं है जिनका जो है ना सेम रिसोर्सेज हो, या फिर वो ऐसी कोई भी चीज़ यानी a good strategy uses them effectively, ताकि कोई भी अपने जो है अच्छी स्ट्रैटेजी अगर है उसको तो वो effectively उसको यूज़ कर सके. कोई भी कंपनी के रिसोर्सेज सेम नहीं हो सकते. So it is durable and lasting and difficult for competitors to copy. A superior research and development department, for example, can consistently develop new products or processes to remain ahead of competitors. So durable जो है होता है, lasting होता है, और difficult होता है competitors ताकि उसको copy कर सकें, उसको नहीं आपके competition में जो है वो उसको copy नहीं कर सकते. And एक सुपीरियर रिसर्च जो है और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आपका लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो वो कंसिस्टेंटली नए प्रोडक्ट्स डेवलप कर सकते हैं या ऐसे प्रोसेसेस डेवलप कर सकते हैं जिससे वो अपने कंपटीशन से आगे रहें, ठीक है, और उनसे विन करते रहें. सो इट प्रोवाइड्स अ बेसिस फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट. फिर ये एक बेस बनाता है ताकि आप मजीद इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें अपने उसमें प्रोग्राम में, इंस्टीट्यूशन में. It provides direction and motivation to the entire organization. और फिर entire organization में आपका ये motivation भी create करता है और उनको एक direction अपने goals को achieve करने के लिए उन direction भी show कर देता है. Now, as each of these characteristics relates to quality, quality can be an important means of gaining competitive advantage. So, जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये जब क्वालिटी को रिलेट करते हैं तो क्वालिटी जो है वो एक इम्पोर्टेंट मींस बन जाते हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन कर सकें. सो लेट अस सी हाउ टोटल क्वालिटी कंट्रीब्यूट्स टू कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. सो अब अगर हम देखते हैं तो हम ये जज करते हैं कि टोटल क्वालिटी जो है वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है ताकि हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल कर सकें. नाउ नंबर 1 वुड बी डिस्कस कॉस्ट लीडरशिप, differentiation and people as principal sources of competitive advantage and their relationship to quality. So आप डिस्कस कर सकते हैं लीडरशिप को, डिफरेंशिएशन आप लेके आ सकते हैं, एंड पीपल एज प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और ऐसे लोगों को जिनको आप प्रिंसिपल सोर्स समझते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हासिल करने के लिए, एंड देयर रिलेशनशिप टू क्वालिटी, और उनका क्वालिटी का के साथ रिलेशनशिप. फिर दूसरा पॉइंट है रिलेट क्वालिटी टू द अचीवमेंट ऑफ हायर प्रॉफिटेबिलिटी, और आप क्वालिटी अचीवमेंट को जो है ना आप हायर प्रॉफिट्स के साथ गिन सकते हैं कि अगर जाहिर बात है आप क्वालिटी अचीव कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट्स भी ज्यादा मेजर गेन कर रहे हैं. सो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी इन मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशंस in product design, service flexibility and variation, innovation and rapid response. So आप डिस्क्राइब कर सकते हैं इम्पोर्टेंस जो है क्वालिटी की, वो कि कस्टमर की नीड्स को मीट कर रहा है, ठीक है, उनकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है, खास तौर पे प्रोडक्ट डिजाइन की सूरत में, उनकी सर्विस की सूरत में, फ्लेक्सिबिलिटी एंड वैरायटी की सूरत में, फिर इनोवेशन आ रही है उसमें, और रैपिड रिस्पॉन्स आपको सर्विस का मिल रहा है. एंड द क्लासिक
literature, so sources of competitive advantage अगर हम judge करते हैं, the classic literature on competitive strategy suggests that a firm can possess two basic types of competitive advantage, low cost and differentiation. So हम फिर क्लासिक लिटरेचर अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी एक फर्म जो है वो दो बेसिक टाइप जो है पोसेस कर सकती है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के ऊपर, एक लो कॉस्ट के बेस में और एक डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन भी आ जाए एंड लो कॉस्ट भी आ जाए तो फिर ऑब्वियसली वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उनका हो जाएगा किसी और अपनी कंपनी कंपटीशन की कंपनी में. Now when we speak about cost leadership, so cost leadership, now many firms gain competitive advantage by establishing themselves as the low cost leader in the industry. So कई ऐसे firms हैं जो competitive advantage gain कर जाते हैं उस चीज़ से कि वो जब अपने आप को establish कर रहे होते हैं low cost leader अपने आप को industry में वो साबित कर देते हैं. That means कि उनकी cost सबसे ज़्यादा कम आ रही होती है. So these firms produce high volumes of mature products and achieve their competitive advantage through low prices. So ये firms जो हैं ये हाई वॉल्यूम्स हैं या मेच्योर प्रोडक्ट्स की जो है ना हाई वॉल्यूम्स बेच रहे होते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एंड देन उनको बेच रहे होते हैं और उनको बेचते हैं बहुत लो प्राइसेस पे उनको प्रोवाइड करते हैं, तो उससे उनको फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल जाता है. ऑब्वियसली जब उनका क्वालिटी जो है हाई वॉल्यूम्स यानी क्वांटिटी भी बढ़ गई, उनकी क्वालिटी भी उनकी बेहतर हो गई और उनकी प्राइस भी लो हो गई, तो ऑटोमेटिकली उनको मार्केट पे कॉम्पिटिशन पे उनको एडवांटेज मिल जाता है. Now, such firms often enter markets that were established by other firms. और ऐसे firms अक्सर जो low prices पे enter होते हैं वो ऐसी markets में enter होते हैं जहाँ पे already किसी और firm ने वो market establish कर ली है और उनकी competition में वो आके खड़े हो जाते हैं. So they emphasize achieving economies of scale and finding cost advantages from all sources. So वो obviously वो emphasize करते हैं economies को achieving economies, ठीक है, economies of scale और ये चीज़ फाइंड करना कि कॉस्ट एडवांटेजेस जो हैं वो सारे सोर्सेज की वो भी emphasize उस पर भी करते हैं. नाउ लो कॉस्ट कैन रिजल्ट फ्रॉम हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. सो लो कॉस्ट जो है कम कॉस्ट आएगी, वो रिजल्ट होगी किससे, हाई प्रोडक्टिविटी एंड हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. और कैपेसिटी अगर आप पूरी तरीके से हाई उसमें यूज कर रहे हो, अपनी यूटिलाइज कर रहे हो, प्लस आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो रही है, तो ऑब्वियसली फिर आपका कॉस्ट जो है वो लो हो जाएगी. सो मोर इम्पोर्टेंटली इम्प्रूवमेंट्स इन क्वालिटी लीड टू इम्प्रूवमेंट्स इन प्रोडक्टिविटी विच इन टर्न लीड टू लोअर कॉस्ट. सो ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि इम्प्रूवमेंट्स जो है वो क्वालिटी की तरफ लेके जाती है, लीड करती हैं, ठीक है, एंड दे लीड टू मजीद उससे वो इम्प्रूवमेंट्स जो है प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट्स लाने में हेल्प करती है और क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स लाने में जो उसके उसमें टर्न में विच इन टर्न लीड टू लोअर कॉस्ट. और जो ऑब्वियसली जब आपकी इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं और क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट्स हो रही हैं, प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो वो आपकी कॉस्ट तो लोअर हो ही जाएगी उससे. So thus a strategy of continuous improvement is essential to achieve a low cost competitive advantage. So अगर low cost competitive advantage हासिल करना है तो उसके लिए ये strategy apply करना continuous improvement का वो बहुत ज़्यादा essential या बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है. Now when we speak about cost leadership, अब अगर हम cost leadership के बारे में बात करते हैं, now to achieve cost leadership for high volume products, company use a variety of approaches. So अगर हम cost leadership high achieve करना चाह रहे हैं किसी भी products के high volume achieve करने में, तो कंपनी जो है वो मुख्तलिफ approaches use करती है. अब पहला approach क्या होगा कि manufacturing जो है वो जल्दी हो, early manufacturing, ठीक है, involvement in the design of the product, both for make versus buy decisions and for assurance that the production processes can achieve required tolerances. So early manufacturing involvement हो जाए, ठीक है, जिसमें डिज़ाइन और प्रोडक्ट का उसको डिस्कस किया जाए वो मेकिंग में भी और जब वो बाइंग वर्सेस बाइंग कंडीशन डिसीजंस में भी. और फिर फॉर अश्योरेंस हम वो ये चीज़ देखेंगे जी प्रोडक्शन प्रोसेसेस जो है वो
required tolerances पूरी कर पा रही हैं या नहीं. So product design to take an advantage of automated equipment by minimizing the number of parts, eliminating fasteners, making parts symmetric whenever possible, avoiding rigid and stiff parts and using one-sided assembly designs. So product design अगर हम देखते हैं वो advantage ले जाता है किस चीज़ पे, ऑटोमेटेड इक्विपमेंट पे, ठीक है, ताकि वो मिनिमाइज हो उसका नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है, और एलिमिनेट उसके फास्टनर्स हो सके ताकि वो एक सिस्टमैटिक या सिमेट्रिक तरीका बन सके पॉसिबल जब भी पार्ट्स का, एंड उसमें रिजिड एंड स्टिफ पार्ट्स को अवॉइड किया जाए, एंड उसके जो है वन साइडेड असेंबली डिजाइन हो. Now limited product models and customization in distribution centers rather than in the factory, और product models को limit कर दिया जाए and customization को distribution में कम कर दिया जाए, limit कर दिया जाए, ताकि वो center कर सके distribution centers rather than in the factory, निस्बतन के वो factory में हम उसको limit करें, वो हमें distribution centers में उसको limit करना, ये customization में उसको limit करना. Now cost leadership means that a manufacturing system designed for a fixed sequence of operations. So manufacturing system जो है वो डिज़ाइन किया जाता है एक fixed sequence का operations की. So every effort is made to ensure zero defects at the time of shipment. और हर effort की जाती है ताकि shipment के time पे आपको ये मालूम हो कि आपके zero defects जा रहे हैं. So work in process inventory is reduced as much as possible, and multi-skilled focus teams of employees are used. So work जो है वो एक work in process inventory जो है वो बन जाती है, और उस inventory से the inventory is reduced as much as possible, and multi-skilled focus teams of employees are used. और ज़्यादातर जो है ना जिनमें multifunctional जो teams हैं ऐसे या focus teams हैं, ठीक है, उन employees को use किया जाता है. So cost leader can achieve above average performance if it can command prices at or near the industry average. तो कॉस्ट लीडर अगर हम जज करें तो वो अचीव कर सकता है अबव एवरेज परफॉर्मेंस को, ठीक है, और इफ इट कैन कमांड प्राइसेस at or near the industry average especially. So however it cannot do so with an inferior product, लेकिन वो किसी inferior product के साथ ये चीज़ नहीं हो सकती. So the product must be perceived as comparable with competitors, or the firm will be forced to discount prices well below competitors' prices to gain sales. So हमें अपने प्रोडक्ट का जो है वो ये जज करना चाहिए कि वो कंपैरेबल है क्या, मुकाबले में आ सकता है हमारे कंपटीशन के कॉम्पिटिटर्स में, और अगर नहीं आ सकता दैट मीन्स कि फिर हमें क्या होगा कि हम फोर्स हो जाएंगे कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स की या कंपटीशन में जो कंपनीज हैं उनकी प्राइसेस से भी बिलो हमारी प्राइसेस गिर जाएं जो हमें नुकसान में लेके जाए, ताकि हम सिर्फ सेल्स गेन कर सकें. सो दिस कैन कैंसल और बेनिफिट्स दैट रिजल्ट फ्रॉम कॉस्ट एडवांटेज, और ये फिर वो सारे बेनिफिट्स कैंसिल हो जाते हैं इससे जो कॉस्ट एडवांटेज की तरफ हमें लेके जा सकते हैं. नाउ टू अचीव डिफरेंशिएशन, a firm must be unique in its industry along some dimensions that are widely valued by customers. So अगर हम achieve करना चाह रहे हैं differentiation को, तो एक firm जो है उसको unique होना पड़ता है in its industry, अपनी industry में, especially along some dimensions that are widely valued by customer. खास तौर पे ऐसे dimensions में जिसमें जो है जो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा वैल्यू की जिनको दी जाती है. So it selects one or more attributes that customers perceive as important and positions it uniquely to meet those needs. So obviously वो फिर सिलेक्ट करता है एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स ऐसे या ऐसे क्वालिटीज जो है जो कस्टमर्स परसीव करते हैं इम्पोर्टेंट, ठीक है, और उसको पोजीशन कर देता है ऐसे यूनिक तरीके से जिससे कस्टमर की नीड्स पूरी हो सके. So for instance, now Dell's direct business model was the first of its kind in the computer industry and continues to be a principal source of the company's success.
सो अगर आप कंप्यूटर में देखें तो आप एक मिसाल के तौर पे देख सकते हैं कि डेल की जो डायरेक्ट बिजनेस मॉडल था उसका, ठीक है, वो अपन कंप्यूटर इंडस्ट्री में सबसे पहले एक यूनिक अपने ही किस्म की एक चीज़ बनी, ठीक है, और अभी तक वो एक प्रिंसिपल सोर्स है अपनी कंपनी की सक्सेस के लिए। दैट मीन्स कि उसके अंदर ऐसे फीचर्स हैं या ऐसी क्वालिटी है कि वो अभी तक जो है उसका नाम चल रहा है और वो अपनी कंपनी का भी नाम चला रहे हैं। Now, differentiation अगर हम जज करते हैं, so often a firm with a differentiation strategy can command premium prices and achieve higher profits. So एक फर्म जो है अगर उसके अंदर डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी आ जाती है तो वो फिर कमांड कर सकती है प्रीमियम प्राइसेस को भी और हायर प्रॉफिट्स भी गेन कर सकती है। Now, Duran cites an example of a power tool manufacturer that improved reliability well beyond that of competitors. तो जुरान ने एक एग्जाम्पल हमें देता है वो पावर टूल मैन्युफैक्चरर का, जिसने अपनी रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया अपने कंपटीशन में जो उसकी कंपनी थी उससे कहीं हद तक ज्यादा। Now, field data showing that the differences in reliability resulted in significantly lower operating costs were publicized. And the company was able to secure a premium price. So field data ने ये दिखाया कि differences जो है reliability में वो उन्होंने significantly lower operating cost को publicize किया और कंपनी जो है वो एक premium price तक फिर उसको secure कर सके। So however, a firm that uses differentiation in its source of competitive advantage must make its product or systems difficult to copy. So इसमें यह है कि जो भी differentiation अगर एक कंपनी या एक फर्म यूज कर रही है, ठीक है, तो उसको ऐसे सोर्स जो है ना competitive advantage के ऊपर सोर्सेज यूज करने चाहिए जो उसके प्रोडक्ट्स और सिस्टम्स को मुश्किल बना दे ताकि कंपटीशन वाले उसको कॉपी ना कर सकें या आपकी जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस आपके कंपटीशन में वो उसको कॉपी ना कर सकें। सो ऑफन दिस इन्वॉल्व्स कल्चर, हैबिट्स एंड संक कॉस्ट। सो ज्यादातर ये जो है ये कल्चर को फोकस करता है, हैबिट्स को फोकस करता है और संक कॉस्ट को फोकस करता है। सो फॉर एग्जांपल, व्हाई डजंट एवरी कंपनी कॉपी डेल्स सुपीरियर डायरेक्ट बिजनेस मॉडल? सो अगर हम ये जज करते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें कल्चर भी इन्वॉल्व होता है, हैबिट्स भी इन्वॉल्व होते हैं और संक कॉस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं। सो फॉर एग्जांपल हम फिर ये चीज़ कहते हैं कि हर कंपनी जो है वो डेल की तरह सुपीरियर डायरेक्ट बिजनेस मॉडल क्यों नहीं क्रिएट करता, ये क्यों नहीं उनके पास कॉपी क्यों नहीं हो जाती उनके पास। So Dell's approaches are hardly a secret. Even Michael Dell has written a book about it. So Dell की जो approaches हैं वो obviously secret तो है नहीं, उसके मालिक ने जो है वो इजाद जिसने किया है माइकल डेल ने, उसने तो उस पर किताब भी लिख दी है। So competitors have copied its website with stunning precision, but they face far greater difficulty copying the supporting activities, purchasing, scheduling, and logistics that Dell has built around its direct model over several decades. So बहुत सालों से जो है डेल एक अपने इर्द गिर्द जो है ना अपने डायरेक्ट मॉडल के इर्द गिर्द जो है एक ऐसी सपोर्टिंग एक्टिविटीज बिल्ड कर रहा था जिसमें परचेसिंग, स्केड्यूलिंग और लॉजिस्टिक्स आ जाते हैं, जिसको कंपटीशन में जो कंपनीज थी वो चाहते हुए भी कॉपी नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने वेबसाइट को तो बड़े अच्छे तरीके से कॉपी कर लिया, ठीक है, लेकिन वो ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज को कॉपी नहीं कर पाए। So competitors are burdened by long-standing relationships with suppliers and distributors and a different culture. So obviously फिर competitors जो है वो एक burden हो जाते हैं, long-standing relationships उनकी बन जाती हैं अपने suppliers और distributors के साथ, और एक and different culture एक create हो जाता है उनके लिए। So when we speak about people, now the competitive advantage resulting from an organization's people can drive low cost and differentiation. So competitive advantage जो है किसी भी organization के लोगों से जो हासिल होता है, ठीक है, वो low cost की तरफ और differentiation की तरफ लेके जाता है। Now for example, over several decades, Southwest Airlines has been the most profitable US carrier. So अगर हम देखें तो सालों से अरसों से जो है Southwest Airlines जो है वो US की सबसे ज़्यादा profitable carrier है। So it has fewer employees per aircraft and flies more passengers per employee. So most of its cost advantage comes from its very productive, motivated and unionized workforce.
सो उसके पास बहुत कम यानी एयरक्राफ्ट की निस्बत उसके पास एम्प्लॉइज कम है, एक एयरक्राफ्ट के जितने होने चाहिए उससे ज़रा कम अमाउंट में, एंड वो ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को ज़्यादा पैसेंजर्स को फ्लाई कर रहा है निस्बतन के कम एम्प्लॉइज़ के साथ. सो उसका ज़्यादातर कॉस्ट एडवांटेज कहाँ से आ जाती है कि वो उसका इट्स फ्रॉम द वेरी प्रोडक्टिव, उनका जो वर्क फोर्स है, जो काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं उनके, वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं एंड यूनियनाइज्ड हैं. सो इज इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लो कॉस्ट और इज इट द पीपल? सो ये क्या लोग हैं उसके, या उसका competitive advantage है जो low cost है? So it would appear that the real driver of Southwest competitive advantage is its people. So अगर हम देखें तो हमें ज़्यादातर तो यही लगेगा कि उसके competitive advantage उसके लोगों की वजह से. So Herb Kelleher, former CEO, once stated, उसका former CEO उसने कहा एक दफ़ा कि it's the intangibles that are the hardest things for competitors to imitate. कि ऐसी intangible चीज़ें जो है वो competition के लिए कॉपी करना या imitate करना वो difficult हो जाता है. So students, that's it for our 23rd lecture today. We will continue with discussing people and the different strategies that we can use for total quality management in our next lecture. Thank you so much.